Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 5th, Adjective and its kind of English grammar, page number 40, 42 and 43. This is part 2 video of chapter number 5. In this video, we are going to learn about the third kind of adjective. As in previous video we have already understood about adjective. What is adjective? Adjective क्या होते हैं ये हम already ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और हमने two kinds भी adjective के पढ़ चुके हैं. First one is adjective of quality and adjective of quantity. ये already हम लोग पहले ही learn कर चुके हैं. In this video we are going to learn the third part, adjective of number. And in this video we are going to learn 3 degrees of adjective. Adjective की कौन कौन सी 3 degrees होती हैं वो learn करेंगे, और हम इस वीडियो में cardinal number and ordinal number learn करेंगे. These 3 topic I am going to cover in this video. First we will learn about adjective of number. 2 kinds we have already learned, adjective of quality and adjective of quantity. This one is the third part, third kind of adjective, adjective of number. So adjective of number answer the question how many. adjective of number से हमें पता चलता है कि how many, कोई भी चीज़ वो जो adjective है वो basically कितना है, how many कितना है. So here you can see once again the adjective of number. Adjective of number describe the number of its noun and pronoun. ये डिस्क्राइब करता है कि वो जो नाउन और प्रोनाउन है उसका, ये डिस्क्राइब करता है कि वो कितने नंबर हैं, मतलब हाउ मच कितना है, हाउ मैनी कितने हैं वो, कि वो जो नाउन और प्रोनाउन है वो कितने हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, फ्यू, ऑल फर्स्ट, सेकेंड, मैनी, सम, एनी, मोस्ट, मोर, एक्सेट्रा. Now we are going to learn through examples. The first example here is few cats like to drink milk. इसका मीनिंग हुआ कुछ कैट जो हैं, कुछ बिल्लियों को दूध पीना पसंद है. तो few मतलब कुछ, तो how many मतलब कितनी है, कुछ ना, तो few here is a adjective. Now the second one is my friend has 4 mobiles. Here how many mobiles are there? 4. So number is 4. तो 4 is an adjective in this sentence. कि मेरे फ्रेंड के पास में 4 मोबाइल हैं, तो 4 is a adjective in this. Third one is there are several mistakes in your notebook. आपकी कॉपी में बहुत ज़्यादा, several मतलब बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ हैं. So कितनी है? Several, बहुत ज़्यादा. So several here is a adjective in this sentence. Now the fourth one is Sunday is the first day of the week. So Sunday जो है वो दिन का, पूरे हफ्ते का पहला दिन होता है. So here first is a adjective, क्योंकि कितने कौन सा दिन होता है वो? Sunday. How many कितने हैं, तो first जो हो जाएगा वो क्या होगा? Adjective. So here adjective of number we have already understood कि क्या होते हैं. how many की कोई भी noun और pronoun कितना है, how many कितने हैं, few, 1, 2, several, like this. adjective of number answer the question how many. as I told you adjective of number ये बताता है कि वो कितने हैं, how many कितने हैं. if we learn the definition from book it shows the number of a noun. ये बताता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर की नाउन जो है वो कितने नंबर हैं, कितनी हैं, काउंटेबल नाउन को. इट इज़ यूज टू इंडिकेट द एग्जैक्ट कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर भी बताता है, ऑर्डिनल नंबर भी बताता है, और इंडिकेट नंबर्स भी बताता है. इंडिकेट नंबर्स आर लाइक मैनी, फ्यू, सेवरल, एक्सेट्रा. कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर दिस टॉपिक of noun and pronoun. If answer the question how many, it answer the question how many or in what number. ये as I told you previously कि कितने हैं वो बताता है adjective of number.
एग्जेक्टिव ऑफ नंबर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि क्या होता है. इट शोज द नंबर of a noun countable. It is used to indicate the exact cardinal number or ordinal number as I told you, or indicated number. Indicative number जो होते हैं basically are many, several, few, etc. Or what is cardinal and ordinal number? Now we are going to learn about cardinal number or ordinal number. Cardinal number और ordinal number क्या होते हैं? Cardinal numbers are expressed as कार्डिनल नंबर होते हैं जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. दीज आर यूज टू इंडिकेट नंबर्स. ये इसलिए यूज़ होते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ इंडिकेट करनी होती है. और ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू इंडिकेट रैंक और ऑर्डर. और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो हमें कोई भी रैंक या फिर ऑर्डिनल नंबर इंडिकेटेड रैंक पता करनी होती है या ऑर्डर पता करना होता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट्स लाइन वाइज खड़े हैं तो कौन राहुल फर्स्ट है या राहुल लास्ट है ये पता करना है. तो रैंक पता करनी हो, इंडिकेटेड रैंक, या फिर ऑर्डर पता करना हो, सो फॉर दैट वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स. सो ऑर्डिनल नंबर्स आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. I hope you understood about cardinal number and ordinal number. Cardinal number, as I told you, you can see here in this chart. These are cardinal numbers. ये सारे cardinal numbers होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. And ordinal numbers होते हैं जैसे first, second, third, fourth, fifth. These are ordinal numbers. I hope you understood about the adjective of number भी आप समझ चुके हैं and you have already understood about cardinal and ordinal number. Now the third part is left in this video. First we are going to learn about the 3 degrees of adjective. Adjective की कौन कौन सी 3 degrees होती हैं वो हम अब इस चैप्टर में लर्न करेंगे. In basically there are 3 degrees of adjective. Adjective की 3 degrees होती हैं. एक होती है positive degree, second one is comparative degree and third one is superlative degree. ठीक है. The first one is positive, second one जो होती है वो comparative होती है. जब हम किसी भी चीज़ को compare करते हैं, जब हम तुलना करते हैं तो उसके लिए we use then, right? Third one is superlative degree. और superlative जब होती है जब हम ये बताते हैं कि वो चीज़ जो है वो सबसे अच्छी है उन चीज़ों में, तो हम यूज़ करते हैं the का. Basically this is the English rule. We use ER with comparative degree and superlative degree के लिए we use EST, right? Comparative degree we use ER and superlative EST. Use of ER and EST. Suppose this is positive, this is comparative and this is superlative. Positive में अगर लिखा है tall तो ER हम लगाते हैं, so comparative में क्या हो जाएगा taller, superlative में हो जाएगा tallest. Similarly short positive हुआ, कंपैरेटिव में हो जाएगा शॉर्टर एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा शॉर्टेस्ट. सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर बिग. से बिग पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बिगर और बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, लेंथी लेंथियर लेंथिएस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, white, black, bitter, sweet, sour, clean, dirty, cold, hot, fast, slow, hard, tough, salts, rich, poor, strong, weak, heavy, light. These are the examples of positive, superlative and comparative degree. Similarly, you can see one more example here. Young, young में year लगाए तो क्या हो जाएगा younger और youngest. Similarly, old, older, oldest. Old को हम elder भी बोलते हैं और eldest भी बोलते हैं, right? Next, here you can see what we have to learn and what we have to keep in mind. हमें अपना ध्यान क्या रखना है इस चीज़ में. कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन लगाते हैं और सुपरलेटिव के पहले हम द का यूज़ करते हैं. When we talk about the degrees, तो हम कंपैरेटिव में देन यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में द बिफोर. सुपरलेटिव में पहले यूज़ करते हैं. सी यूज़ एंड मोर एंड मोस्ट.
मोर कंपैरेटिव में हम मोर का यूज़ करते हैं और देन का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव में हम मोस्ट और द का यूज़ करते हैं। सो एक्टिव जैसे है, एक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, तो हम उसका कंपैरेटिव लिखेंगे मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव हो जाएगा सुपरलेटिव। सिमिलरली रेगुलर पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, नो ER नो EST, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम न तो ER लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए, न ही EST लगाते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे गुड हुआ, गुड का बेटर होता है और बेस्ट हो जाता है, ऐसे ही बैड का वर्स और वर्स्ट हो जाता है। इसमें हम ER और EST या द और देन नहीं लगाते, या मोर और मोस्ट भी नहीं लगाते। मच का मोर हो जाता है या मोस्ट हो जाता है, लिटिल का लेस या लेसर या लीस्ट हो जाता है, राइट। दीज आर द फ्यू वर्ड्स जिनमें हम लोग ER और EST या मोर एंड मोस्ट नहीं लगाते। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, चेयरफुल, डेंजरस, डिफिकल्ट, डिलिगेंट, फेमस, फुलिश, हार्मफुल, हॉनेस्ट, इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टेड, पॉपुलर, पावरफुल, पेशेंट, अर्जेंट, यूजफुल, एक्सेट्रा। एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ER और EST हम यूज़ करते हैं, तो जैसे ही बैड, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER EST या मोर मोस्ट यूज़ नहीं करते, राइट। बैड, वर्स, वर्स्ट, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस एग्जाम्पल। ब्यूटीफुल में मोर और मोस्ट आएगा तो मोर, ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्राइट में ER और EST आएगा, ब्राइट, ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट, बिजी, बिजियर एंड बिजिएस्ट। सिमिलरली यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम मोर एंड ER लगाते हैं, सुपरलेटिव में हम मोस्ट एंड EST यूज़ करते हैं, राइट। हियर यू कैन सी अगेन देन, देन हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी राधिका इज़ बेटर इन स्टडीज़ देन मी, मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसकी तुलना हो रही है, राधिका जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई में, तो मेरे से तुलना हो रही है, तो हेयर वी हैव यूज्ड देन, राइट। सिमिलरली द सेकेंड एग्जाम्पल इज राधिकाज हैंड राइटिंग इज द बेस्ट इन आवर क्लास। लगाया, सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव में हम ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी है उसकी, तो पूरी क्लास से उसकी सुपरलेटिव मतलब हम उसका कंपेयर कर रहे हैं कि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी है, राइट। द कुतुब मीनार इज़ टॉलर देन द ताजमहल, ताजमहल से कंपेयर कर रहे हैं कुतुब मीनार को, तो इसलिए देन यूज़ किया, दिस इज़ कंपैरेटिव। एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव बिकॉज हमने उसमें द का यूज़ किया। द कुतुब मीनार इज़ द टॉलेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया, सबसे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है पूरे इंडिया में, तो द यूज़ किया क्योंकि उसको हम पूरे सबसे ज़्यादा लंबी है इसलिए हम उसका यूज़ किया, तो द हो गया सुपरलेटिव। You can read this page. We have already understood about the positive degree, comparative and superlative. This part I have already taught you in details. I hope you understood this part. You have a nice day.